Deputy Registrar Sir, non-teaching staff members, and my beloved students. It's a day of great honor for all of us because we celebrate independence. And as ma'am has beautifully explained in the morning, that independence can be talked about in two aspects: the independence of the nation and the independent life we all of us want to lead. So let's, with this vision in mind, I would present two lines before you. I was not in a position to sing today considering my throat and the cough, but still I realize that this is the only day when you should not step back despite all difficulties. So I have to sing a couple of lines, dedicating it to the nation, dedicating it to all of us present here. And I think this is a song which all of us are aware of, and I want all of you to sing this song with me. This song is precisely for the people who have lived their lives in the borders, and they have lived the life, they have sacrificed their lives so that we live an independent life. So just a few lines for all those people. And I would like to start. It is Sande Se Aate Hain, which I'm sure all of us are aware of, and I want all of you to sing this song. चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ओ, 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 संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, उसे उनके बेटे का नाम दे, उसे उनके बेटे का नाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उनके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को तू ये सलाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में किसी के छाँव में, कि माँ के आंचल से किसी के काजल से, गाँव के पीपल से किया था वादा जो वो निभाऊँगा। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं आपका 2-4 मिनट और लूँगी और मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बीच मौजूद हैं ऐसे लोग जिनका बात मैंने किया अभी, और आप उनको देखेंगे। और मेरा ये खुद का एक क्यूरियोसिटी है, मुझे जानना है कि उनको कैसा लगता होगा जब वो बॉर्डर पे रहते हैं। और मैं बुलाना चाहूँगी, हमारे बीच मौजूद है हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार सर, विंग कमांडर दिनेश सिंह मलिक साहब। और मैं बुलाना चाहूँगी अर्जुन सर को। अर्जुन सर अगर यहाँ पे है तो सर प्लीज़। हमारे बीच और कोई मौजूद हैं जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया है? आइए सर। शेखावत सर है यहाँ पे? तो ये हमारा सबका सवाल है कि आपका एक्सपीरियंस के बारे में हमें 2 सेंटेंस में आप ज़रा बताइए कि आपको कैसा लगा था जब आप बॉर्डर पे थे। आप सबको अगेन दोबारा से आज के इस पावन दिवस की अगेन से शुभकामनाएं। मैं अगेन आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम विंग कमांडर दिनेश सिंह मलिक, रिटायर्ड फ्रॉम एयर फोर्स। आई रिटायर्ड इन 2021. I served for 27 years in Indian Air Force, during which I performed various type of duties. The basic branch of mine was administrative. However, as the Indian Air Force believed in multi-skilling, so I was given various tasks of missile squadron, missile operations as well as air defense operations. I have experience of serving here also in Jodhpur from 2013 to 2017, and here I was performing the duties of air defense. So just to apprise you that our forces are working 24/7 for protecting the sovereignty, this freedom which we have achieved with the long struggles and great sacrifices. So I have a lot of stories, experiences, but I am slightly cautious also that I should not share the sensitive information also. Just to apprise you that all the defense forces, paramilitary, police, law enforcing agencies, everybody is working hard 24/7. I will share one of the instance when I was serving in this area in the western borders. I was on the air defense duties. So air defense duties are performed with the help of the radars, missiles, and the fighter aircraft. They are 24/7 on duty. There is a bunch of people who are working in the operations room, who are underground. They are sitting in the dark room, performing the duties 24/7. And these radars are scanning these skies all the times. Whatever is picked up, that is identified by the team within some seconds. If it is not identified, that is tackled with the standard operating procedures which are there. In case it is not identified, that is communicated by the fighter controller on duty. Once I was on duty and I found such a suspicious pickup by the radar in this area only. So the first reaction is we have to analyze what is the situation. So it was analyzed by me as an airspace violation. The switch was on, red light was on, and buzzer was there. Everybody was alert. The agencies which were involved, the civil police, BSF, which were on the borders, they were contacted, and we could not identify it within
the 2 minutes also. Thereafter, the fighter aircraft was scrambled. It was sent in that area, but unfortunately, it could not pick up because it was a slow moving. Thereafter, a helicopter with the Garud sniper on board was sent, and they would pick up it, and they identified that it was a weather balloon which came from across the border. However, this was also tackled. It was neutralized. It was brought on the ground. Helicopter was sent. It was brought. It was sent to the DRDO for further research. However, it was found it was only a weather balloon. So, my idea of sharing this kind of experiences is to assure you that they are working and they are alert. Even any bird or anything which is unauthorized cannot enter into our space. So I have a lot of other stories also, but it will take long time. Again, I will thank Shantini ma'am for giving me this opportunity, and बहुत बहुत शुभकामना के साथ मैं और बाकी लोगों को भी चांस देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको इस पर्व की बहुत बहुत बधाई हो स्वतंत्रता दिवस की। और मैं बीएसएफ में सर्विस किया है पूरा। 69 में बीएसएफ ज्वाइन किया था, जब मैं यहाँ से चौपासी स्कूल जोधपुर यहीं से पास किया मैंने, इलेवन पास करते बीएसएफ में भर्ती हो गया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि बीएसएफ के नाम से है कि ये बॉर्डर पर ड्यूटी करती है। 69 जैसे हम भर्ती हुए, ट्रेनिंग के बाद तुरंत हम 71 वार में चले गए। 1 साल तक लोग तो 10-15 दिन की लड़ाई थी। आर्मी में ऐसे भर्ती होते हैं जो रिटायरमेंट हो जाते हैं और लड़ाई देखते भी नहीं, लेकिन हमारे को इतना चांस मिला, भर्ती ट्रेनिंग करते ही हम सीधे बांग्लादेश में चले गए। और लड़ाई तो 10-15 दिन की थी, लेकिन पूरी साल हम मुक्ति वाहिनी फौज बने हुए कंटिन्यू लगता, कभी तक लगते आगे बढ़ते 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 ढाका तक हम आर्मी के साथ कंटिन्यू लड़ाई की। उसके बाद में लड़ाई के बाद जब मेरी पोस्टिंग लास्ट पोस्टिंग उस समय बीएसएफ की पोस्टिंग मेरी हिसार में थी। हिसार जब रिटायरमेंट हो वहाँ से लड़ाई करके जो वापस आए, रेलवे स्टेशन से लेके छट्टा मिल बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे उसमें, तो उन्होंने हमारी बहुत ही मतलब उसे आवादर किया उसके साथ। उसके बाद में आगे बढ़ते गए सर्विस होते गई, आगे प्रमोशन पाते गए। सिपाही से मैं लेके सब इंस्पेक्टर कंप्लीट करके इंस्पेक्टर तक पहुँचा। लड़ाई के अंदर लास्ट में फिर बाद में हम आगे कश्मीर में गए। कश्मीर में बहुत, आप जानते आपने हमारा नाम सुना है, तो हमने उनके सामना किया खूब, कई बार आमने सामने हुआ है, कई बार फाइटिंग हुआ है। तो ऐसे फिर कश्मीर में जितना हमने सर्विस का आनंद आ रहा था, वैसे ही सेब खाने का आनंद आ रहा था। पेट्रोलिंग जाते थे, जब घूमते फिरते थे, सेब थे कि बस बड़े पेड़ को खूब आनंद लेते थे। और घर में टोकरियाँ गाँव भी भेजते थे, तो साथी आते थे वैसे भाई इसी जोधपुर मेरे बच्चे यहाँ रहते थे, तो हर कोई को आता जाता था, उसके साथ सेब भी खूब भेजते। यानी बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने। करीब 39 सर्विस किया मैंने पूरा बीएसएफ में, और अभी भी रिटायरमेंट नहीं हुआ। आप सुनो, रिटायरमेंट नहीं हुआ अभी भी। 35 मेरी एज हो गई है और मैं अभी सर्विस में हूँ। 57 साल से मेरी सर्विस करते हुए होंगे और आगे जब करते ओके। जय हिंद। इन फ्रंट ऑफ यू मैं सूबेदार मेजर HN गौर। मैं लास्टली जून में रिटायर हुआ हूँ। मैं आफ्टर 30 ईयर सर्विस, 30 साल सर्विस तीनों सेनाओं को देने के बाद मैं आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिस सेंटीमेंट के साथ हमने 30 साल सेना में गुजारे हैं, वो सेंटीमेंट आप लोगों के बीच में देखे, महसूस किए, और जो भी आपका कल्चरल प्रोग्राम रहा उसमें हमने वो विजिबलाइज किया, वो देखा कि आपका जो स्नेह और प्यार हम तीनों सेनाओं को मिलता है, उसी से हम वो काम कर पाते हैं, देश के लिए सेक्रीफाइस कर पाते हैं और अपना आपका सर्वस्व देश को न्यौछावर कर पा रहे हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वो देश की सीमाएं हैं, लेकिन जहाँ से हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पूरा देश हमारे पीछे है। यही साहस, यही शौर्य, यही प्रदर्शन
हमें इंकरेज करता है कि 140 करोड़ देशवासी जब एक सुर में देश के लिए जय हिंद बोलते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है और हम महसूस करते हैं कि इस देश के लिए कुछ करने का जज्बा हम जितना सीमाओं पे दिखाते हैं उतना ही हमारे यहाँ बैठे हर नागरिक, हर जिम्मेदार व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में निभाता है। उसी से हमारे देश की तरक्की और उन्नति होती है। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने देता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ एक सैनिक, आपके सामने क्या छवि आती है? वही एक बंदूक, वही एक हेलमेट। बट आई वांट टू से सॉरी, सेना इस पे सिर्फ सीमित नहीं है। आप सोचिए सेना क्या कर सकती है। सेना आपको देश में जाने वाले 2 बहादुर दिए हैं। जो अंतरिक्ष में गए हैं वो भी सेना के थे। अगर आप ओलंपिक खेलते हैं तो वहाँ भी सेना है। अगर आप बड़े बड़े ब्रिज और वहाँ देखते हैं तो वहाँ भी सेना है। सेना एक डायमेंटिक रोल में होती है, उसका एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो देश को बुस्टअप करता है। आपकी अगर महामारी है तो वहाँ सेना है, अगर बाढ़ है तो वहाँ सेना है, अगर देश के अंदर कोई भी आपदा है तो सेना है। लेकिन सेना किसी नाम के लिए नहीं, सेना देश के लिए है। हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, हम देश से स्नेह चाहते हैं। आप भी देश से प्यार करें, हम भी देश से प्यार करें और देश से तरक्की करें, यही सोच हमारी रहती है। इसी सोच और इसी जज्बे के साथ हम काम करते हैं और इसी जज्बे के साथ ना तो हम कभी रिटायर्ड होते हैं और न ही कभी हम थकते हैं। आखिरी सांस तक जब तक रहेंगे कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हम अपना योगदान देंगे और ये विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी रहेंगे हम अपना सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और आपको अलग नजर आएंगे कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं और किस ढंग से हम काम करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम बहुत सिंह है। मैं 30 साल आर्मी में लगा के ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायरमेंट हुआ 2013 को। मैं इंजीनियर ग्रुप से हूँ और मेरे ग्रुप के अंदर सभी टेक्निकल ट्रेड 46 ट्रेड होते हैं। उसके अलावा हमारे जो कहने का मतलब फौज में जहाँ भी रीड की टीम इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि जितने भी फौज को ऑप्टिकल्स आते हैं उसको क्लियर करना हमारा काम है। जैसे विकेट बनाना है, कहीं माइन फील्ड लगाने हैं, उनको रिकवर करना है। और ये इवन मतलब बेसिक चीज़ें जो भी है, पीस में कुछ अलग रूल हो जाते हैं, लड़ाई के अंदर कुछ अलग होते हैं, लेकिन सारे हम लोग करते हैं। और साथ में एज ए इन्फेंट्री के रोल भी हमें करने पड़ते हैं, जैसे माइन फील्ड लगाना, हेलीपैड बनाना, एयर पट्टी बनाना, उसके अलावा बड़े बड़े डेमोलेशन करने हैं, कई टाइप के ब्रिजेज हैं वो बनाने हैं, डिसमेंटल करने हैं, इस तरह के काम होते हैं। तो हमने ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे काम किए। ज़्यादा अगर हम इंसर्जेंसी एरिया में रहे तो ओपी विजय, ओपी पराक्रम, ओपी रक्षक, सारे इनमें काम किया। तो हमें श्रीलंका में ओपी भवन में भी काम करने का मौका मिला, जहाँ एलटीडी का भाव था। तो सारा करते हुए साहब ने बता ही दिया है कि हम कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। खाली दिखने के लिए एक आर्मी का ड्रेस के अंदर हर एक आदमी ये होता है कि सोल्जर आर्मी दिखता है, ड्रेस में वैसा नहीं है। अंदरूनी बहुत सारे काम हैं जो हमेशा करना पड़ता है। फ्लड रिलीफ में भी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हर तरह के काम आते हैं। बाकी साहब ने बता दिया, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जय हिंद।